दूसरा क्वेश्चन, दिखाओ कि कोई भी धनात्मक टांक संपूर्ण संख्या 6q + 1 ਜਾਂ 6q + 3 ਜਾਂ 6q + 5 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ q ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਧਨਾਤਮਕ ਟਾਂਕਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 6q + 1 6q + 3 6q + 5 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ए कोई धनात्मक संपूर्ण संख्या है ਅਤੇ B ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 B 6 ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ Q ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ A ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, A 6q + r। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ 6q ਔਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ r ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। r ਹੈ ਜਿੱਥੇ r ਜਿਹੜਾ ਹੈ 0 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6 ਲੈਸ ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ 6 ਮਤਲਬ r ਜਿਹੜਾ 0 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ r ਜਿਹੜਾ ਹੈ 0 1 2 3 4 5 ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ r 1 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਗਰ r 1 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 6q ਬਣੇਗਾ, 2 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 6q + 2, 3 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 6q + 3 r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, 4 ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 6q + 4, 5 ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 6q + 5 ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਧਨਾਤਮਕ ਟਾਂਕਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 6q ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 4 ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟਾਂਕਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 2 ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ 6q ਇੱਕ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6q + 1 6q + 3 6q + 5 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨਾਤਮਕ ਟਾਂਕਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧਨਾਤਮਕ ਟਾਂਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 6q + 2 6q + 4 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 6q + 1 6q + 3 ਅਤੇ 6q + 5 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚ ਗਏ 6q + 1 3 ਅਤੇ 5 ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਂਕਪੂਰਨ ਧਨਾਤਮਕ ਟਾਂਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ
ਹਨ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਧਨਾਤਮਕ ਤਾਂਗ ਪੂਰਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੀਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ 616 ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ 32 ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਤੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਤੰਭਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 616 ਅਤੇ 32 ਦਾ HCF ਲੈਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, 616 ਅਤੇ 32 ਦਾ HCF पता करना है। तो सानू 616 ते HCF ते क्योंकि फिर असीं लिखांगे क्योंकि 616 32 तो वड्डा है तां असीं 616 ਅਤੇ 32 ਤੇ ਯੂਕਲਿਡ ਪ੍ਰਮੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 616 ਲਿਖਾਂਗੇ, 616 ਨੂੰ 32 ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, 616 ਨੂੰ 32 ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ 19 ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਥੱਲੇ 8 ਬਚੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਯੂਕਲਿਡ ਪ੍ਰਮੇਜ ਦੇ ਲਈ 32 ਗੁਣਾ 19 ਜਮਾ 8, 32 ਗੁਣਾ 19 ਜਮਾ 8, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ 8 ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 8 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 32 ਅਤੇ 8, 32 ਅਤੇ 8 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਕਲਿਡ ਪ੍ਰਮੇਜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਆਏਗਾ, 32 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 32 ਨੂੰ 8 'ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ, 8 ਚੌਕਾ 32 ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਉਹ 0 ਬਚੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ 0 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 616 ਅਤੇ 32 ਦਾ HCF 8 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਸਤੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ HCF ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਪ੍ਰਮੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਕਿਸੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ m ਦੇ ਲਈ 3m ਜਾਂ 3m plus 1 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 3q ਦੇ, 3m ਤੋਂ ਅਸੀਂ 3q ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। 3q ਇੱਕ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ a ਬਰਾਬਰ ਹੈ bq plus r ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ a 3q bq plus r ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ b ਜਿਹੜਾ 3q ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ r ਜਿਹੜਾ ਹੈ 0 ਅਤੇ b ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। b ਬਰਾਬਰ ਹੈ 3 ਅਤੇ r ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ 0 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਲੈਸ ਦੈਨ 3, ਕਿਉਂਕਿ
आर जरा हुंदा है 0 लैस दैन इक्वल टू आर लैस दैन बी। 0 आर जरा 0 ਤੇ b ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ b ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ r ਜਰਾ 0 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਆਏਗਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਾਕੀ r ਜਰਾ 3 ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ 1 2 0 1 2 ਹਨ। अगर आर 1 है तो साढ़े को 3 क्यू आ जाएगा। आर की जगह तो अगर असी लिखिए इत्थे बनेगा ए 3 क्यू बनेगा। आर की जगह आर 0 है तो 3 क्यू बी क्योंकि क्यू है 3 है, तो अगर 2 होएगा 1 होएगा तो बन जाएगा 3 क्यू प्लस 1, अगर 2 होएगा तो बन जाएगा 3 क्यू प्लस 2। इसलिए एक्स की जी वैल्यूज़ आएगी, एक्स बराबर है 3 क्यू जां 3 क्यू प्लस 1 जां 3 क्यू प्लस 2 दे रूप विच हो सकता है। अगर एक्स बराबर है 3 क्यू असीं लैंदे आ, तो हुण असीं की करांगे, दोहां पासे स्केयर कर दांगे, दोहां पासे वर्ग करन ते स्केयर करांगे तो आ जाएगा इधर एक्स की स्केयर 3 क्यू का स्केयर। 3 क्यू का स्केयर कितना होंदा है 9 क्यू का स्केयर। 9 क्यू नूं असीं लिखांगे 3 क्यू का स्केयर। हुण असीं इहदी जगह ते 3 क्यू की जगह ते असीं एम लिख दिंदे, M1 3 M1, जिथे साडे कोल क्या आ जाएगा क्योंकि M1 किहदे बराबर आ गया 3 क्यू के स्केयर दे। ठीक है, अते M1 कोई संपूर्ण संख्या है, एक संपूर्ण संख्या है। जी अगर लईए असी लईए अगर x बराबर है 3 क्यू प्लस 1, हुण फिर असी की करांगे दोहां पासे वर्ग करन ते, दोहां पासे वर्ग करांगे तो इधर आ जाएगा एक्स स्केयर और इधर बन जाएगा 3 क्यू प्लस 1 का स्केयर। इधर स्केयर करांगे तो बनेगा असी ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला लावांगे, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ये बन जाएगा 9 क्यू स्केयर प्लस 2 गुना 3 क्यू गुना 1 प्लस 1 का स्केयर, 1 ही रहेगा। 9 क्यू स्केयर प्लस 6 क्यू प्लस 1, ये आ गया। इनू असीं लिख सकते हैं इस तरीके नाल। इहदे विचों असीं अगर 3 बाहर कढ दईए तो आ जाएगा 3 क्यू स्केयर प्लस 2 क्यू प्लस 1, इनू असीं मान लैंदे M1। फिर दोबारा तो ये बन गया साडे कोल इनू असीं M2 मान लैंदे आ, ये बराबर आ जाएगा 3 M2 प्लस 1, जिथे M2 बराबर है 3 क्यू स्केयर प्लस 2 क्यू अते M2 कोई संपूर्ण संख्या है। हुण असीं लास्ट लेना है, अगर एक्स है साढ़े को 3 क्यू प्लस 2, 3 क्यू प्लस 2 लवांगे तो फिर दोहां पासे स्केयर करांगे, दोहां पासे वर्ग करन ते स्केयर करांगे बन जाएगा एक्स स्केयर 3 क्यू प्लस 2 का स्केयर, स्केयर करांगे ये बन जाएगा ए प्लस बी होल स्केयर का, फिर फार्मूला लाओ, इधर बनेगा 3 क्यू स्केयर प्लस 2 गुना ए गुना बी 2 गुना 3 क्यू गुना 2 प्लस 2 का स्केयर। 3 क्यू का स्केयर हो गया 9 क्यू का स्केयर, ये बन जाएगा 6 दूनी 12 क्यू प्लस 4। हुण की करना असी
इनू लिखांगे 9q² प्लस 12q प्लस 4 ਨੂੰ लिख ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 3 प्लस 1 और इन्ने ਨੂੰ ਅਸੀਂ ब्रैकेट 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ 3 बाहर ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ कॉमन, 3 कॉमन निकालांगे तो आ जाएगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। इनू फिर असी 3 नाल बन गया, फिर इनू असी इन्नी चीज़ में असी m3 मान लेंगे। ये बन गया 3m3 प्लस 1। हम इत्थे लिखांगे जिथे m3 की आ गया ये सारी चीज़ 3q² प्लस 4q प्लस 1 अते m3 कोई संपूर्ण संख्या है। ठीक है, इदा सानू जिन्नियां भी दित्तियां संख्यावां उपर निकलियां ये किन्नियां असीं ये कह सकते हाँ कि सारियां संख्यावां जिहड़ियां है वो m सारियां m नाल आईयां। इत्थे भी m आ गया, पिछे उपर भी m2 आया, उस तो उपर भी असीं कहांगे कि सारियां संख्यावां जिहड़ियां धनात्मक संपूर्ण संख्यावां m दे रूप विच आ रहीआं है। इसलिए इनू लिखांगे इसलिए उपर दित्तियां तीनों स्थितियां तो असी यह कह सकते हाँ कि किसी धनात्मक संपूर्ण संख्या दा वर्ग किसी संपूर्ण संख्या m दे लई 3m जा 3m प्लस 1 दे रूप विच हुंदा है। ठीक है, सारा साडे को 3m दे नाल आया, असीं इहनूं कह सकते जिन्नियां भी साडा तीनों स्थितियां विच इन्हां दा वर्ग 3m जां 3m प्लस 1 दे रूप विच हुंदा है। ठीक है, असीं क्लास 10 नैक्सट क्वेश्चन है 5वां यूक्लिड वंड प्रमेय का प्रयोग करके दिखाओ कि किसी धनात्मक संपूर्ण संख्या का कण, पहले वर्ग निकाल लिया, हुण कण कढ़ना, कण 9m प्लस 1 जां 9m प्लस 8 के रूप में हुंदा। हुण उस तरह पहले वर्ग नहीं असीं मन लवांगे कि मन लो x बराबर है 3q, एक धनात्मक संख्या संपूर्ण संख्या है। इस दी a प्लस bq प्लस r नाल तुलना करन ते की आंदा है b आ जाता बराबर है a दी a इक्वल टू bq प्लस r तुलना करेंगे, b की जगह ते आ गया 3 और r सारे को की आ जाएगा b दे विच आएगा, r भी 0 तो 3 दे विच ही आएगा, तो r 0 लैस दैन इक्वल टू 0 लैस दैन इक्वल टू r लैस दैन 3, r जरा 0 तो 3 विच आएगा क्योंकि r जरा है 0 लैस दैन इक्वल टू r लैस दैन b, और b की है सी साढ़े को ये वाला b 3 आया, तो r जरा है ये वाला r 0 तो b दे विच ही आंदा है और b की वैल्यू 3 आई, असी मैं कहांगे r भी 0 तो 3 दे विच ही आएगा। तो इसलिए संभावित बाकी आर की जी भी बाकी आर मीनस बाकी की आ सकता 3 तो थले लैस दैन 3 मीनस 3 तो थले तो 0 के बराबर 0 1 2 ये हो सकते हैं। अगर असी आर नू 1 लईए तो यह सारे को की बनेगा आर की जगह पे, अगर आर 0 है
तो सारे को बन जाएगा 3Q रहेगा। अगर R इत्थे 10 लईए 1 लईए और B की वैल्यू 3 ही रहेगी तो बन जाएगा X, A की जगह तो X लिखांगे तो सारे को बन जाएगा 3Q + 1 और दूसरा बना 3Q + 2। इसलिए X जरा है एक तो 3Q ही होएगा, इत्थे लिखांगे 3Q, अगर 0 है तो 3Q, अगर 1 है तो 3Q + 1, अगर 2 है तो 3Q + 2। 3Q + 1 ਜਾਂ 3Q + 2 ਦੇ रूप ਵਿੱਚ हो सकता है। अगर सारे को X है 3Q तो हुण असीं घन करना, तो की करांगे दोहां पासे घन करन ते घन करांगे तो इधर आ जाएगा X की पावर 3 बराबर 3Q की पावर 3। 3 नूं 3 वारी गुणा करांगे, पावर 3 का मतलब 27Q की पावर 3। 27Q की पावर 3 नूं असीं साडे कोल स्टेटमेंट जिहड़ी 9 के रूप में है, इहनूं असीं 9 के रूप में लिखना है। 9 और 3 अंदर कर देंगे 3Q की पावर 3। हुण इहनूं असीं M बन लांगे, M1 ये बन जाएगा 9M1। पहले वर्गा लिख देंगे जिथे M1 है 3Q की पावर 3 ते M1 एक संपूर्ण संख्या है। ठीक है, हुण नेक्स्ट लवांगे दूसरा असीं लवांगे X बराबर है 3Q + 1। हुण 3Q + 1 ले लांगे, फिर दोहां पासे घन करन ते घन करांगे तो इधर आ जाएगा X³ मीनस X की पावर 3 और इधर आ जाएगा 3Q + 1 की पावर 3। हुण इहदे च असीं फार्मूला लावांगे A + B की पावर 3। A + B होल क्यूब का फार्मूला लावांगे, वो बनता A³ + B³ + 3A² B + 3AB²। इधर बन जाएगा A³ का मतलब 3Q की क्यूब + 1 का क्यूब करांगे तो 1 ही रहेगा, + 3A का स्केयर का 3 गुना 3Q का स्केयर गुना 1 + 3 गुना 3Q और B का स्केयर करांगे मीनस 1 का स्केयर गुना 1 का स्केयर। 3Q का स्केयर बन जाएगा 27Q, ये बनिया 27Q की पावर 3 + 1 और ये बन जाएगा 9 9 × 27Q² और इत्थे बन जाएगा 9। ये बन जाएगा साडे कोल 27Q² + 9Q। हुण इहदे विच्चों एक नूं अलग करके बाकी तीनों नूं असीं इकट्ठा लिख दिंदे आ। ये बन गया साडे कोल 27Q की पावर 3 + 27Q² + 9Q। इहनूं इकट्ठा लिख लिया, एक नूं अलग कर, इन्हां सारिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 की आ कॉमन निकलता पे, 9 बाहर कढ़ दिंदे आ, 9Q बाहर कढ़ दिंदे आ ते 9 बाहर कढ़ांगे बन जाएगा अंदर 3Q की पावर 3 + 3Q² + 3Q + 1। इनू असीं सारे नूं M2 मान लैंदे, इन्ने सारे नूं की मान लैंदे आ 9M2 + 1, जिथे M2 की आ गया 3Q की क्यूब 3Q² 3Q ਅਤੇ M2 एक संपूर्ण संख्या है। हुण नैक्सट हैगा सी साडे कोल X बराबर है 3Q + 2। हुण फिर दोहां पासे घन करांगे, दोहां पासे घन करन ते इधर आ गया X की पावर 3 और इधर आ गया 3Q + 2 की पावर 3।
ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ a प्लस b होल क्यूब का फिर फार्मूला लावांगे 3q ਦੀ ਪਾਵਰ 3 प्लस 2q प्लस 3 गुना a ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ 3q ਸਕੇਅਰ गुना 2 प्लस 3 गुना 3q गुना 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 3 क्यूब बन गया 27 क्यूब 2 ਦਾ क्यूब बनया 8 3 गुना 3 9 आया 9 क्यू स्केयर गुना 2 प्लस 3 क्यू 3 3 ਤਾਂ या 9 ਇੱਥੇ 9 ਲਾ ਦਿੰਦੇ 9 क्यू गुना 4 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 27 क्यू ਦੀ ਪਾਵਰ 3 प्लस 8 9 6 54 ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 54 क्यू ਦਾ ਸਕੇਅਰ और 9 ਚੌਕਾ 36 36 क्यू ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ 8 ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 27 क्यू ਦੀ ਪਾਵਰ 3 प्लस 54 क्यू ਸਕੇਅਰ प्लस 36 क्यू ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖ ਲਿਆ प्लस 8 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੀ ਨਿਕਾਲ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ 9 ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 9 ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 3 ਬਚੇਗਾ ਇੱਥੇ ਬਚੇਗਾ 6 ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਚੇਗਾ 4 प्लस 8 ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ m3 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 9 m3 प्लस 8 ਜਿੱਥੇ m3 ਕੀ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ 3q ਸਕੇਅਰ प्लस 6q 3 ਇੱਥੇ क्यूब ਆਏਗਾ 9 3 q ਦੀ ਪਾਵਰ 3 6q ਸਕੇਅਰ प्लस 4q ठीक है। तो m3 कोई संपूर्ण संख्या है ठीक है। हम साढ़े जिन्ने भी सारे सम है ये 9 के रूप में आ गए सानू यही चाहिए सी 9m प्लस 1 9m प्लस 8 यही निकले इत्थे भी पहले 9m1 बनाता ये 9m1 प्लस 1 ये 9m प्लस 8 बनाता इसलिए जिन्नियां भी संख्यावां तो ये पता चलता है कि तीनों स्थितियां तो सानू ये पता चलता है कि जो सानू चाहिए सी 9 के रूप में वो आ गया साडा आंसर नूं असीं लिख देवांगे इसलिए तिन्नां स्थितियां तो यह नतीजा निकलदा है कि किसी धनात्मक संपूर्ण संख्या दा घन 9m प्लस 1 ਜਾਂ 9m प्लस 8 ਦੇ रूप ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ